السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل آن لائن ٹیچنگ کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ ویڈیوز خاص آن لائن ٹیچنگ کے لیے ہیں، اور یہ کورس پورا مکمل کورس 4-5 ویڈیو میں ہے۔ تو آئیے اس کورس کو جوائن کریں۔ بہت سے لوگوں نے خواہش ظاہر کی تھی اور بہت سے کمنٹ کیے تھے ریئلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی آن لائن ٹیچنگ کرنی چاہیے اور ہم آپ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے یہ ویڈیو کورس بنایا گیا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو آپ اس کورس کو سیکھ کر بہت سے فائدے حاصل کر سکو گے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ کلائنٹ لینے کیسے ہیں اور کسی کو اپنے ساتھ اٹیچ کیسے کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو کیسے لینا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف کیسے مائل کرنا ہے، ان سے کیسے پے لینی ہے، پہلے پے کیسے لینی ہے، اور یعنی ان سے قیمت کیسے پہلے وصول کرنی ہے، فیس پہلے کیسے لینی ہے۔ بہت سے لوگ پہلے فیس نہیں دیتے تو بعد میں پورا مہینہ پڑھ کر بھی پھر بھی ان سے فیس نہیں لی جا سکتی، وہ کہتے ہیں ہم آپ نے اچھا پڑھایا نہیں ہے فلاں فلاں۔ تو انہی چیزوں سے بچنے کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کورس پسند آئے گا اور آپ اس کورس کے بعد ہمیں رسپانس بھی دو گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا جو پارٹ ہے وہ ہے ہمارے ویب سائٹس۔ تو کون سے ویب سائٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جسٹ ایک کلو میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس پہ کیسے اس ویب سائٹ پہ کس طرح سے پروفائل بلڈ کرنا ہے اور اس سے کس طرح سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات چیت کرنے، کس طرح سے ان کے نمبرز ڈھونڈنے ہیں، وہ تو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ان ڈیٹیل۔ جسٹ سن لے کے ٹیچر آن یہ ایک بہت بہترین ویب سائٹ ہے، یہ ایک انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے جو کہ دنیا کے تقریباً 150 پلس کنٹریز میں جو ہے نا کام کر رہی ہے، انکلوڈنگ پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ بہترین اس وجہ سے ہے کہ اس پہ آپ جو سبجیکٹ ہے آپ کے، اور جس طرح کے اسٹوڈنٹس آپ چاہتے ہیں اور جس کنٹری میں آپ چاہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ چاہتے ہیں وہاں پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ میں ایک سمپل فار ایگزامپل میں لاہور میں بیٹھا ہوں اور لاہور میں فار ایگزامپل چاہتا ہوں کہ مجھے ٹیوشنز ملے، سپوز گلبرگ میں، ٹھیک ہے، یا DHA میں مجھے۔ تو اس ویب سائٹ کا کمال یہی ہے کہ آپ سپوز اردو کا ٹیچر ہے، آپ قرآن پاک پڑھانا چاہتے، آپ سائنس کے ٹیچر ہے، کسی بھی سبجیکٹ کا ہے، جنرلی میں بات کر رہا ہوں، تو ادھر آپ جا کے اپنا سبجیکٹ سرچ کریں گے اور جو ہے لوکیشن ڈال دیں گے کہ لاہور میں پھر DHA، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو لاہور میں DHA میں جتنے بھی ٹیوشنز ایکٹیو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا آپ کو شو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ کام کیسے کرنا وہ تو میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر یہ ایک ویب سائٹ ہے، یہ تو انٹرنیشنل ویب سائٹ ہے، اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ لاہور میں فلاں جگہ پہ کسی کو ٹیوٹر کی ضرورت ہے، کس طرح سے پتا چلتا ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے، ایک تو سب سے پہلے یہ جو ویب سائٹ ہے ٹیچر آن، اس پہ لوگ خود جا کے جو ہے مطلب مثال کے طور پر میں ایک پیرنٹ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، اس کو میتھس کے لیے ٹیوٹر چاہیے، تو وہ خود جا کے ادھر ریکویسٹ کر دیتا ہے کہ یار مجھے لاہور میں DHA میں بحریہ میں کلاس 7 کے میتھس کے لیے ایک ٹیوٹر چاہیے، یہ گھنٹے ہے، یہ ان کی فیس ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خود پیرنٹس آ کے، خود اسٹوڈنٹس آ کے وہاں پہ ٹیوشن پوز کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس ٹیچر آن کا ویب سائٹ کا جو ایلوگریتم ہے، ایلوگریتم کا سمپل اسائنمنٹ میکینزم، اس کا سمپل میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اتنا انٹیلیجنٹ ویب سائٹ ہے کہ یہ ڈیٹا کو خود بھی کلیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر فار ایگزامپل ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، وہ گوگل پہ سرچ کر رہا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا ٹیوٹر ملے جو میرے بچے کو آرٹس کے سبجیکٹس اور سائنس کے مضامین پڑھائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا جو ہے
रैंकिंग वेबसाइट है कि ये जब भी कोई सर्च करता है कि यार आई नीड फॉर एग्जांपल मैथ्स ट्यूटर फॉर माय किड्स, तो सबसे पहले जो है एट द टॉप ऑफ द पेज जो है ना ये इसका लिंक शो हो जाएगा। तो जब वहां पे ये क्लिक करता है तो डेफिनेटली ये टीचर ऑन के वेबसाइट पे चला जाता है और वहां पे उनसे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है स्टूडेंट्स इस पे ट्यूशंस को पोस्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी हम काफी ज्यादा ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो दो ये बातें आप लोग नोट किए, ठीक है, कि टीचर ऑन, ठीक है, काम कैसे करना है वो तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करें। सिर्फ इतना आप याद रखें कि टीचर ऑन पे हमने काम करना है। ठीक है, जो दूसरा वेबसाइट है विज IQ भी इसको कहते हैं, बाद लोग इसको वाइजिक भी कहते हैं। ठीक है, तो विज IQ जो है ये भी एक बेहतरीन वेबसाइट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो मसला ये आता है वो ये है कि इस पे ज्यादातर जो क्लाइंट्स आपको मिलेंगे वो आपको मिलेंगे जो UK USA, ठीक है ना, जो डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है ना, इस पे आपको पाकिस्तानी ट्यूटर्स या ऐसे जो मतलब पाकिस्तानी जो ट्यूशन है स्टूडेंट्स है, या आपके साथ जो और लोकल कंट्रीज है, मिसाल बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, इसके स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं मिलते। यहाँ पे काफ़ी अच्छी जो है ना आपको जो है सैलरीज प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इस वेबसाइट पे जो आपने प्रोफाइल बिल्ड करना है, ठीक है, वो टीचर ऑन के मुकाबले में जो है काफ़ी ज़्यादा, यानी एज कम्पेयर टू टीचर ऑन मुश्किल नहीं है। मैं आपको इंशाल्लाह सारी टेक्निक्स बताऊंगा कि कैसे आप लोगों ने विज IQ पर भी काम करना है। लेकिन एज कम्पेयर टू टीचर ऑन ये इसका जो स्ट्रक्चर है, या हम कह सकते हैं कि इस पे आपको ट्यूशंस थोड़े से मुश्किल से मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे टेक्निक से हमारे बहुत ज़्यादा ट्यूटर्स अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस पे आ रहा है। लेकिन मैंने आपको कहा कि इसमें मसला सिर्फ ये है कि इस पे ज़्यादातर इंग्लिश कंट्रीज के ट्यूशंस आते हैं। तो आप में से वो हजरात, वो टीचर जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, तो वो यहाँ पे आके जो है ना उनको इंशाल्लाह ट्यूशंस इंशाल्लाह मिल जाएंगे आसानी के साथ। ठीक है, ये स्पेशली हमने उन टीचर्स के लिए शेयर करना है, ठीक है, जो उनकी इंग्लिश थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और इंग्लिश में उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो। ठीक है, बाकी जो टीचर ऑन है वो वेबसाइट आल इन आल है, उसमें आप इवन आप सराइकी के स्टूडेंट भी आपको मैं, पंजाबी के स्टूडेंट भी आपको मिलेंगे, आपको उर्दू के भी मिलेंगे, आपको पश्तो के भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको हर जुबान के हर तरह के, ठीक है ना। लेकिन जो विज IQ है इसमें आप लोगों ने, ये भी मैं फिर आपको बताऊंगा कि किस तरह से, अगर आपको इंग्लिश की फॉर एग्जांपल समझ नहीं आ रही, फिर आपने किस तरह से इस पे जो है पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स है उसको टारगेट करने हैं और किस तरह से उनके साथ आपने जो है ना कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, तो ये तो दो वेबसाइट से हमारे इस कोर्स का जो हिस्सा है उसको हम इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब जो दूसरा हिस्सा है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, और मैं समझता हूं कि एज कंपेयर टू जो फर्स्ट पार्ट में मैंने दो वेबसाइट्स का जिक्र किया, अगर कोई बिल्कुल इनको स्किप करे, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप इनको स्किप करें, उनको भी साथ चलाए, लेकिन अगर आपने ये दूसरा पार्ट अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आप यकीन करें कि फिर आपके लिए जो है ना स्टूडेंट्स पैदा करना, स्टूडेंट ढूंढना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इंतहाई पावरफुल टूल है, इंतहाई जो है इसमें स्कोप है, और मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत जल्द जो है, बहुत क्विक जो है ना मुझे रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाए, मुझे स्टूडेंट्स जो है ना आना शुरू हो जाए, सो ये जो सेकंड पार्ट है जिसको हम SMM का नाम हम देते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, थोड़ा सा इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये तो इन डिटेल हम इंशाल्लाह जब आफ्टर टीचर ऑन और विज IQ के बाद हम इसको इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या? ठीक है, देखिए हम आम तौर पे
फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब वगैरह वगैरह, ये हम सिर्फ इस हद तक जानते हैं कि इस पे आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, इसको आप शेयर कर सकते हैं, इस पे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज वगैरह देख सकते हैं, ड्रामास देख सकते हैं। और इतना सुना है कि इससे अर्निंग भी हो सकती है, लेकिन हमें पता नहीं है कि किस तरह से इससे अर्निंग होती है। अर्निंग के इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो हमारे लिए जो तरीका है, क्योंकि हम टीचर्स हैं और टीचर्स के लिए इसमें जो स्कोप है उसी को हम जो है ना मद्देनजर रखते हुए डिस्कस करेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग दो तरह से होती है। एक ये है कि आपने मिसाल के तौर पे एक पेज बनाया, फेसबुक पेज, उस पे आपने एक पिक्चर लगाया और लोगों को कहा कि यार ये जो है मेरी सर्विसेज है, मैं एक ट्यूटर हूँ और मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, और लोगों को भी बताया कि यार इसको लाइक करे, कमेंट करे और शेयर करे। ये फ्री तरीका है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक रीच। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपने शेयर किया और किसी को पसंद आया, किसी को जरूरत थी आपकी आसपास, आप उसने उसको देखा तो उसने अगर कांटेक्ट किया तो ठीक है, अदरवाइज यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है, फ्री मार्केटिंग, ठीक है। इसके भी टूल्स ये तरीके हैं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म है, इसमें आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना होता है, और हम तो सॉरी टू से पाकिस्तानी लोग मेहनत से भागते हैं, ठीक है ना। जब मेहनत की बात आती है तो हम कहते हैं यार, मैं जब ये कोर्स लंच कर रहा था तो मेरे साथ जो प्रीवियस स्टूडेंट थे वो मुझे यही कह रहे थे कि सर आप ये लंच तो कर रहे हैं, लेकिन ये लोग आपसे यही डिमांड करेंगे कि हमें रातों रात जो है ना अमीर करे, या रातों रात हमें स्टूडेंट ला के दे। तो मैंने उनको कहा कि इंशाअल्लाह ताला मैं ये जो कोर्स में डिज़ाइन करता हूँ, इंशाअल्लाह ताला ये इनको इंशाअल्लाह ताला विद इन फ्यू डेज इंशाअल्लाह ताला, वीक्स की भी बात नहीं करते, क्योंकि जब वीक्स की बात आ जाती है तो फिर हम फिर से घबराते कि नहीं सर, हमें बस कोई ऐसा जो है ना तरीका बताए कि आज ही जो है ना अप्लाई करें और बस कल से, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला वही तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी जो है मेहनत की है काफ़ी ज़्यादा इस कोर्स पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था फ्री मार्केटिंग के बारे में, और दूसरा है इस पे पेड एडवर्टाइजमेंट, पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग क्या चीज़ है और इससे मुराद मेरा क्या है? मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल मैं एक आम एग्जांपल ले तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल सर्फ एक्सेल, ये एक बहुत ही मशहूर कंपनी है जो कि डिटर्जेंट का काम करती है, ठीक है। ये हर मैं आप जहां जाए और मिसाल के तौर पर आपको सर्फ की ज़रूरत पड़े तो आप जो है ना सर्फ एक्सेल, बोनस, ये कुछ ब्रांड्स हैं, उनका नाम जो है ना आपके दिमाग में आ जाता है, या आपको मार्केट में शॉप में यही चीज़ें डिटर्जेंट के हवाले से यही चीज़ें नज़र आएगी। और आप लोग अक्सर देखते हैं कि ये लोग जो है बहुत ज़्यादा जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा खर्चे करते हैं। आप लोग यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस की बीच में उनके कमर्शियल आ जाते हैं, ठीक है। आप फेसबुक पे वीडियो देखते हैं, एकदम अचानक से उनके कमर्शियल आ जाते हैं। आप स्क्रॉल करते हैं और एकदम फीड्स में, फेसबुक की जो फीड्स है उसमें जो है ना सर्फ एक्सेल का एड आ जाता है। ये जो आपको एड देखता है ना, ये वैसे नहीं देखता, इसके पीछे लॉजिक है, और लॉजिक है पेड एडवर्टाइजमेंट। पेड एडवर्टाइजमेंट का मतलब यही है कि सर्फ एक्सेल वालों ने कुछ पैसे फेसबुक को दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जो बंदा यानी इस तरह हो, मिसाल के तौर पर शॉपकीपर हो, हाउसवाइफ हो, या कोई फैक्ट्री में काम करता हूँ और वो जो है मिसाल फॉर एग्जांपल को सर्फ की ज़रूरत होती है, तो ये मेरा एड जो है उनको आप दिखाए, और इन एज के लोगों को दिखाए। मिसाल के तौर पर बच्चों को ना दिखाए, बूढ़ों को ना दिखाए, एज रखे 20 से लेके 50 साल तक, मिसाल के तौर पर जनरली बात मैं कर रहा हूँ। तो वो जो एड है फेसबुक
इतना इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, इतनी इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है कि वो एड फेसबुक जाके उन्हीं लोगों को जो उन्होंने इनको बताया है उन्हीं को दिखाएगा, ठीक है ना। और जो लोकेशन आपने इनको बताया है कि यार ये मेरा एड जो है आप पाकिस्तान के इस शहर में दिखाए, तो सिर्फ उन्हीं लोगों को ये एड आपका देखेगा, बाकी लोग इनको नहीं देख सकेंगे। अब इसका फायदा क्या है सर? या सर अगर एड देख फॉर एग्जांपल हम तो रोजाना के हिसाब से एड्स देखते हैं तो हमने तो कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगा कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मिसाल के तौर पर देखिए फेसबुक क्यों इंटेलिजेंट है। फेसबुक को कैसे पता चलता है कि यार ये जो बंदा है इनको सर्फ एक्सेल चाहिए, ये एड इनको आप दिखाएंगे तो ये खरीदेगा। मिसाल के तौर पे मैं शूज लेना चाहता हूँ, आजकल सर्दियों का मौसम है, मैं शूज लेना चाहता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए कोई वेस्ट कोट या कोई और चीज लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं इंटरनेट पे आ गया, गूगल पे आ गया और मैंने गूगल को कहा कि यार मैं चाहता हूँ कि लाहौर में कहाँ पे किसी अच्छे ब्रांड के शूज मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना। लाहौर में मुझे कहाँ पे किसी अच्छे ब्रांड के शूज मिल जाएंगे। तो गूगल क्या कर देता है, गूगल आपकी जो बिहेवियर है, यानी आपने जो सर्च किया, ये फेसबुक जो है उस चीज को अपने साथ जो है रिकॉर्ड में ले लेता है। सिंपल अल्फाज में मैं कहता हूँ, टेक्निकल बात है, टेक्निकल बातों में फिर मैं नहीं जाता, सिंपल सी बात में मैं कहता हूँ कि आपने जो एक्टिविटी किया कि आप गूगल पे गए, आपने सर्च किया कि यार मुझे शूज चाहिए, बाटा के शूज चाहिए, सर्विस के शूज चाहिए मिसाल के तौर पे, तो गूगल ने क्या किया, आपका जो बिहेवियर था, यानी जो आपने सर्च किया, आपको जरूरत थी डेफिनेटली, वो फेसबुक एल्गोरिथम इतना तेज है कि वो इसको कैच कर देता है और उनको पता चल जाता है कि सपोज लाहौर में एक बंदा है, आमिर नाम है उसका, वो जो है शूज की तलाश में है। अब आप क्या है, आपने फेसबुक को पैसे दिए कि यार मेरी कंपनी है शूज की और मैं चाहता हूं कि ये कोई ले, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन ले, ठीक है, या मतलब मैं किसी को ये दिखाऊं और वो मेरी शॉप पे आ जाए। तो फेसबुक क्या करेगा, आपका जो एड है वो आमिर नामी लड़के को दिखाएगा, उनको बार बार दिखाएगा, उनको उनके फीड्स में आएगा, उनके स्टोरीज में आएगा, वो जब भी वीडियोस देखेगा, वो जब भी फेसबुक को ऑन करेगा तो उनके सामने आपका एड आएगा, लाजिमन आएगा, ठीक है ना, ये गारंटी। तो हमारा काम क्या होगा, हमने इस तरह से ऑनलाइन जो है ना स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, हमने ऐसे पेरेंट्स ढूंढने हैं जो गूगल से पूछता है कि यार मुझे टीचर चाहिए। अब आप कहेंगे सर गूगल से कौन पूछता है, तो ये तो आप कहते हैं, आपको तो पता नहीं है। ये मैं आपको बताता हूँ कि रोजाना कितने लोग जो है, आप आज जाए और गूगल कीवर्ड प्लेनर इसको कहते हैं, आप इसको इंस्टॉल करें या डायरेक्टली आप गूगल कीवर्ड प्लेनर गूगल में सर्च करें, वहां पे जाए और वहां पे लिखे ऑनलाइन ट्यूटर, तो आप देख ले कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर कितने लोग रोजाना के हिसाब से सिर्फ इस वर्ड को सर्च कर रहे हैं कि हमें जो है ट्यूटर चाहिए। और वो फेसबुक टूल है जो इस चीज को कैच कर देता है, ठीक है ना, और इसको जो है जो अपने रिकॉर्ड में रख देता है। तो हमने ये तरीके इस कोर्स में सीखने हैं कि हमने किस तरह से अपने एड को बनाना है, कहाँ पे चलाना है, किस एज के लोगों को दिखाना है, और जो है किस तरह से इंटरेस्ट यानी इसमें टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारे कौन से होंगे, और हम किस तरह से कम खर्चे में जो है अपना एड जो है लोगों को दिखा के ताकि वो आ जाए और हमसे ट्यूशन पढ़े, ठीक है ना। सर इसकी अब क्या गारंटी है कि अगर मैं एड दिखाऊं तो लाजिमन स्टूडेंट आएंगे। तो देखिए जी जनाब, मैं एक बात कहता हूँ बार बार अपने स्टूडेंट्स को भी, और आप लोग भी सुन लें, ऑनलाइन बेचेस वाले भी सुन लें। देखिए फेसबुक में हम जब एड लगाते हैं ना, तो ये नहीं कि मैंने एड लगाया और बस यकदम जो है ना, हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है, शायद आपको 5 मिनट के अंदर, शायद आपको 10 मिनट के अंदर,
लेकिन फेसबुक जो है आपका एड जो है अपने साथ लेके 1 दिन 2 दिन तक उसको बार बार दिखाएगा। मैं आपको अभी एक वो एक्टिविटी आप पे कराना चाहूँ, तो आप ये एक्टिविटी घर में करे भी, आज जाके करे, इस लेक्चर को देखे तो ये एक्टिविटी जरा कर ले। आप जाके फेसबुक पे जरा सर्च करें कि मिसाल के तौर पे आप सर्च करें शूज, क्या सर्च करें, शूज सर्च करें, वैसे लिख ली शूज सर्च करें और फिर बाहर निकले। आप देखेंगे कि कुछ घंटों बाद, कुछ मिनटों के बाद फेसबुक जब आप स्क्रॉल करते हैं तो फेसबुक आपके सामने मुख्तलिफ स्पॉन्सर एड्स जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके शूज आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आल तो आपने एक दफा सर्च किया फिर बाहर निकल गए। अब फेसबुक ने आपकी ये एक्टिविटी कैप्चर की। फेसबुक क्या करेगा, वो लोग जिन्होंने फेसबुक को पैसे दिए हैं, ठीक है ना, ये तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पैसे देने, कैसे, ये नहीं कि आप जाके फेसबुक का कोई ऑफिस होगा उधर आप पैसे जमा करेंगे, नहीं, वो मैं आपको तरीके बताऊंगा इन डिटेल, लेकिन सिर्फ समझे तो वो शूज जो है आपके सामने आ जाएंगे। इसी तरह आप जो है अपना एड जब रन करेंगे तो जो लोग इस सर्च में है कि यार मुझे कुरान के लिए ट्यूटर चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, फिजिकल चाहिए, मुझे मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट का हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स है। आपने अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो इसका मतलब ये है कि आप भी एक टाइम में स्टूडेंट थे, तो इसी तरह हजारों के और आपकी तरह स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। सो ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग ये एक बेहतरीन टूल है। मैं समझता हूं कि ये वेबसाइट से भी ज्यादा, मैं अगर आपको एक प्रूफ के तौर पे बताऊं, और ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ आगे लेक्चर्स में आपको लाइव दिखाऊंगा भी, कि हमारे साथ एक हाफिज कुरान आया और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने कोर्स करवाना है, और कोर्स का मेन मकसद मेरा ये है कि मुझे ऑनलाइन जो है ना कुरान पाक की तफसीर के लिए और जो कुरान पाक के जो नाज़िरा है उनके लिए जो है स्टूडेंट्स मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि यार आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब आप किस टाइम आप फ्री होते हैं, किस टाइम आप पढ़ाना चाहते हैं, और जो है आप कौन सी कंट्रीज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आया आपकी जुबान कौन सी होनी चाहिए। देखिए फेसबुक में इतना भी जो है ये इतना इंटेलिजेंट है कि जब आप इनको बताए कि मेरे लिए फॉर एग्जांपल यूके में जाके मैनचेस्टर में जाके फला स्ट्रीट में ये एड मेरा दिखाए, लेकिन उन लोगों को जो उर्दू बोलते हैं, उन लोगों को जो पश्तो बोलते हैं, तो आपका जो एड होगा वो सिर्फ इन ही लोगों को बार बार फेसबुक दिखाएगा जो उर्दू बोलता है, जो पश्तो बोलता है, जो पंजाबी बोलता है। अब आप इससे अंदाजा लगाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए एड लगाया और हमने पहले जो है गल्फ कंट्रीज को टारगेट किया। ये मैं आपको आगे टेक्निक्स बताऊंगा कि पहले आपने कौन सी कंट्रीज टारगेट करने हैं, फिर आपको कहाँ से जो है अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं, कैसे आपने डील करना है, कोर्स का हिस्सा है। तो जस्ट मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उन्होंने जो गल्फ कंट्रीज थे उसको हमने टारगेट किया और उन्होंने तकरीबन महज 1300 रुपये लगा के क्योंकि बाहर एड पे खर्चा थोड़ा सा ज्यादा आता, महज 1300 रुपये लगा के उनको 7 मैसेजेस आ गए व्हाट्सएप पे। अब आप जरा सुन लें, व्हाट्सएप को कैसे कनेक्ट करें वो तो हम बाद में सीखेंगे। व्हाट्सएप पे उनको 7 मैसेजेस आ गए और 7 में से 5 के साथ उनकी डील पक्की हो गई। वो जो 2 थे वो भी उनकी जो ट्रेनिंग उन्होंने स्टार्ट नहीं किया था और हमने उनके लिए एड चलाया, तो उनकी मिस कम्युनिकेशन की वजह से उनके साथ उनकी अच्छी तरह से डीलिंग नहीं हुई। आल्दो वो भी एग्री थे, लेकिन हाफिज साहब ने बताया कि मैंने उनको कहा कि आप मुझे इतना पेमेंट देंगे, और वो लोग कह रहे थे कि हम इतना, वो जो थे एग्री थे, ये भी मैं आपको बताता हूँ, वो एग्री थे 25,000 पे कि हम आपको 25,000 देंगे। लेकिन हाफिज साहब का डिमांड थोड़ा सा हाई था, उनको ऑलरेडी 5 ट्यूशन मिले थे। तो
1300 में 7 मैसेजेस और 7 मैसेजेस में से 2 जो थे वो उनकी आप जो समझे इनएक्सपीरियंस की वजह से उनको नहीं मिल गए, बाकी 5 के 5 कन्वर्ट हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज लाखों में कमा रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है नीला जादू है और ये जो है लॉजिक है एसएमएम मार्केटिंग की। आप जो है ना इंशाअल्लाह ताला जब ये ट्रेनिंग कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप इतने काबिल हो जाएंगे, इतने काबिल, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इंशाअल्लाह आप खुद से अपना एड रन कर सकेंगे, खुद से जो है ना अपने बिजनेस को मैनेज कर सकेंगे और आपका पूरा एक सेटअप होगा। लेकिन शर्त यह है कि जो बातें मैं आपको बताऊंगा इस पे आपने अमल करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कोर्स है इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि हम आपको जो है बस आपने पेमेंट किया 1000 और इस 1000 में जो है बस मैं आपको क्लास लूंगा और आप जाके जो है कुछ भी नहीं करेंगे और बस डायरेक्टली नो। मेहनत शर्त है, मेहनत लाजिमन करनी है और मेहनत वो करनी है जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के जो मतलब टाइम है वो वेस्ट ना हो जाए और आपके पैसे जो है वो भी ज़ाया ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जो सेकंड लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले जो है टीचर ऑन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और टीचर ऑन के बाद जो है हम विज IQ की तरफ हम लास्ट में जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है कि आपको जल्दी से स्टूडेंट्स मिले, ठीक है। तो टीचर ऑन को हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस करें, सेकंड क्लास में, फिर थर्ड क्लास में हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें जो जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। और फिर थर्ड में हम फिर विज IQ की तरफ आएंगे और इंशाल्लाह और भी जो प्लेटफॉर्म है वो आपके साथ शेयर होंगे, ठीक है ना। अब आप लोगों ने आज क्या करना है, आज आप लोगों को मैंने जो कोर्स के दौरान बताया कि ये चीज़ें सर्च करनी है और ये एक्टिविटी करनी है और लास्टिंग ये करना है कि आपने मैंने रात को भी बताया था कि आप लोग जाके प्ले स्टोर से जो है 2 एप्स आप लोगों ने डाउनलोड करने हैं। एक जो है ना फेसबुक एड्स, आप प्ले स्टोर में जाके सर्च करें फेसबुक एड्स, FACEBOOK फेसबुक एड्स ADS, फेसबुक एड्स जब आप सर्च करेंगे तो आपके साथ आ जाएगा फेसबुक मेटा एड्स, इसको आप डाउनलोड करें। और दूसरा जो है ना आपने एक और ऐप डाउनलोड करना है बिजनेस स्वीट। आपने बिजनेस स्वीट जो है ना प्ले स्टोर में जाके बिजनेस BUSINESS लिखना है, स्वीट SUITE, बिजनेस स्वीट लिखना है और जो पहला लिंक आपके साथ आ जाएगा उसको आपने डाउनलोड करवाने, क्योंकि ये हमारे जो थर्ड और फोर्थ लेक्चर है उसमें हमारा काम आएगा, ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका जो भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस लेक्चर, ठीक है ना, तो आप मेरे साथ जो है ना वॉइस मैसेज के साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।